بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ کہیں ایک نیک دل مسلمان تاجر رہتا تھا جس کا نام حاجی عبد الرحمن تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام احمد، یوسف، سلیمان اور بلال تھے۔ حاجی عبد الرحمن نے اپنی ساری زندگی محنت، ایمانداری اور حلال کمائی کے ذریعے بہت ساری دولت جمع کی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک ہی بات کا خوف رہتا تھا کہ اس کے انتقال کے بعد کہیں اس کے 4 بیٹے دنیاوی لالچ میں آ کر آپس میں اس کی دولت تقسیم نہ کر لیں۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جائیداد اور مال ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے 4 بیٹے اس کے بعد بھی مل جل کر رہیں، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں اور مل کر جائیداد کو مزید بڑھائیں۔ ایک دن حاجی عبد الرحمن نے اپنے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور نہایت شفقت اور نصیحت بھرے انداز میں ان سے کہا، میرے بچوں، اب میری عمر زیادہ باقی نہیں رہی۔ میں تم سب کو ایک اہم بات نصیحت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنا۔ میری جائیداد کو تقسیم مت کرنا، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی، عزت اور سلامتی ہے۔ اگر تم نے اس بات کو نہ مانا تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ پھر بھی اگر کبھی تم جائیداد کی تقسیم کا ارادہ کرو تو تم سب اپنے چچا جان عبد الکریم کے پاس جانا۔ وہ ایک دانا، پرہیزگار اور عقل مند انسان ہے اور وہ تمہارے بزرگ بھی ہیں۔ وہ شریعت کے مطابق اور صحیح طریقے سے اس جائیداد کا بٹوارا کر دیں گے۔ چند دنوں کے اندر بوڑھا تاجر حاجی عبد الرحمن اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 4 بیٹے اپنے والد کی نصیحت کے مطابق آپس میں مل جل کر رہنے لگے اور اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ سب سے بڑا بھائی احمد تعلیم یافتہ تھا اور ایک اچھی ملازمت کرتا تھا۔ دوسرا بھائی یوسف قانون کا ماہر تھا۔ اس کے پاس روزانہ لوگ قانونی مشورے کے لیے آتے تھے اور اس کی آمدنی بھی اچھی تھی۔ 2 چھوٹے بھائی سلیمان اور بلال زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وہ باپ کی چھوڑی ہوئی زمین پر کاشتکاری کرتے تھے۔ وہ دن بھر کھیتوں میں محنت کرتے رہتے، جبکہ ان کے دونوں بڑے بھائی آرام سے اپنے اپنے کام کرتے اور نسبتاً آسان زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے۔ سلیمان اور بلال کی بیویوں کے دل میں آہستہ آہستہ یہ بات کھٹکنے لگی کہ ان کے شوہر دن بھر دھوپ میں محنت کرتے ہیں، جبکہ ان کے دونوں بڑے بھائی زمین کے مالک ہونے کے باوجود کھیتی باڑی میں کوئی حصہ نہیں لیتے اور آرام سے وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن دونوں بیویوں نے اپنے اپنے شوہروں سے کہا، تم دونوں کیوں سارا دن کھیتوں میں محنت کرتے رہتے ہو، جبکہ اس زمین میں تمہارے دونوں بڑے بھائیوں کا بھی برابر کا حصہ ہے؟ وہ کاشتکاری میں ہاتھ کیوں نہیں بٹاتے؟ ہمارے خیال میں بہتر یہی ہے کہ اب زمین کا بٹوارا کر لیا جائے۔ سلیمان اور بلال اپنی بیویوں کی باتوں کو شروع میں نظر انداز کرتے رہے اور انسنی کر دیتے تھے، مگر چند دن گزرنے کے بعد انہیں خود محسوس ہونے لگا کہ ان کی بیویاں جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ بالکل غلط نہیں ہے۔ وہ واقعی دن بھر کھیتوں میں محنت کرتے ہیں، جبکہ ان کے دونوں بڑے بھائی زمین میں حصہ دار ہونے کے باوجود کھیتی باڑی میں کوئی حصہ نہیں لیتے۔ ایک دن سلیمان اور بلال اپنے بڑے بھائیوں احمد اور یوسف کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہم دونوں سارا دن کھیتی باڑی میں لگے رہتے ہیں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اب ہم تمہارے حصے کی زمین پر کام نہیں کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم سب مل کر زمین کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ سلیمان اور بلال کی یہ بات سن کر احمد اور یوسف کو دکھ ہوا، مگر انہوں نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، اگر ہم بٹوارا کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنے چچا جان عبد الکریم کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ وہی اس تقسیم کو شریعت کے مطابق اور صحیح طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ یہ سن کر 4 بھائی چچا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چچا جان نے جب انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ وہ سب کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ 4 بھائیوں نے آگے بڑھ کر چچا جان عبد الکریم کے قدموں کو بوسہ دیا اور سلام کیا۔ چچا جان نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے تم لوگ کس لیے آئے ہو۔ مجھے کل رات خواب میں اس بات کا اشارہ مل گیا تھا
बहरहाल तुम सब पहले हाथ मुंह धोकर ताज़ा दम हो जाओ, फिर हम इस मामले पर बात करेंगे। जब चारों भाई नाश्ते वगैरह से फारिग हो गए, तो चचा जान ने कहा, तुम सब यहाँ अपनी जायदाद के बंटवारे के लिए आए हो। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम ज़रूर अंजाम दूंगा, मगर कल रात मुझे ख्वाब में ये बात समझाई गई है कि जायदाद की तकसीम से पहले तुम सबको अपनी बीवियों के साथ अल्लाह के हुजूर दुआ और शुक्र अदा करना होगा। शरीयत के मुताबिक हर अहम काम से पहले अल्लाह की रज़ा तलब करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें एक बुजुर्ग आलिम दीन के पास जाना होगा, ताकि वो हम सब के लिए दुआ करें और हमें सही रास्ता दिखाएं। ये सुनकर चारों भाई दिल से राजी हो गए और अपनी अपनी बीवियों को साथ लेकर चचा जान के हमरा रवाना हो गए। तय ये पाया कि दुआ और रहनुमाई के बाद वो सब वापस लौटेंगे। वो सब सुबह से ही सफर में थे। सूरज की तेज धूप से उनके चेहरे झुलसने लगे थे और सख्त गर्मी पड़ रही थी। कुछ दूर जाकर चचा जान ने कहा, अब हम इस दरख्त के साए में थोड़ी देर ठहर जाते हैं, कुछ खा पी कर फिर आगे चलेंगे। तुम सब करीब के किसी गांव से चावल और दाल ले आओ। ये सुनकर भाइयों ने अपना बटुआ तलाश किया, जिसमें उनके पैसे रखे हुए थे, मगर बटुआ कहीं नजर न आया। सब भाई परेशान और मायूस हो गए। उनकी ये हालत देखकर चचा जान ने कहा, अब उस बटुए का मिलना मुमकिन नहीं लगता। यहाँ आसपास कई गांव हैं। तुम सब ऐसा करो कि अलग अलग सिमत में जाओ और अपनी बसात के मुताबिक मजदूरी करके दाल और चावल का इंतजाम करो। अल्लाह मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। चचा जान की बात मानकर चारों भाई अलग अलग रास्तों की तरफ रवाना हो गए। सबसे छोटे भाई बिलाल ने रास्ते में देखा कि एक किसान अपनी जमीन में हल जोत रहा है, मगर उसके बैल नए होने की वजह से काबू में नहीं आ रहे थे और वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। बिलाल ये मंजर देखकर उसके करीब गया और उससे कहा, आधा दिन गुजर गया है, मगर तुमने अब तक ज्यादा काम नहीं किया। अगर मैं 2 घंटों के अंदर तुम्हारी सारी जमीन में हल चला दूं, तो तुम मुझे क्या मजदूरी दोगे? ये सुनकर किसान खुश हो गया और बोला, अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हें कुछ सेर चावल और सब्जियां दूंगा। बिलाल फौरन हल चलाने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा, तुम जाओ चावल और सब्जियों का बंदोबस्त करके ले आओ, मैं तब तक तुम्हारी जमीन पर हल चला देता हूँ। जब किसान चावल और सब्जियां लेकर वापस आया, तो उसने देखा कि बिलाल सारा काम मुकम्मल करने के बाद एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा है। किसान ने खुश होकर बिलाल को 6 सेर चावल और सब्जियां दी। बिलाल ये सामान लेकर अपनी कयामगाह की तरफ वापस चल दिया, जबकि दूसरी तरफ तीसरे भाई सुलेमान ने रास्ते में 2 आदमियों को किसी मसले पर बहस करते देखा। सुलेमान ने रुक कर उनसे इस बहस की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा, हमारी एक छोटी सी जमीन है जो किसी काम की नहीं रही। इसमें हर वक्त पानी भरा रहता है, इसीलिए हम इसमें अनाज के बीज नहीं बो सकते। हम इसी मसले में आपस में बात कर रहे हैं। ये सुनकर सुलेमान ने कहा, अगर मैं तुम्हें इस मसले का हल बता दूं, तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? उन आदमियों ने जवाब दिया, अगर तुम वाकई हमें कोई फायदेमंद तरकीब बता दो, तो हम तुम्हें 10 रुपए देंगे। ये सुनकर सुलेमान ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका आसान हल बता देता हूँ, तो गौर से सुनो। और फिर सुलेमान ने उन्हें जमीन में पानी निकालने और खेती के काबिल बनाने की तरकीब बताना शुरू कर दी। सुलेमान ने उन दोनों आदमियों से कहा, तुम पहले गोबर और मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर चंद गोले तैयार कर लो। उसके बाद अनाज के कुछ बीज हर गोले के अंदर रख दो, फिर उन गोलों को पानी में डाल देना। ठीक वक्त पर उन गोलों में से सब्ज कौंपलें निकल आएंगी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए वो पानी की सतह से ऊपर आ जाएंगी। ये तरकीब उन दोनों आदमियों को बहुत पसंद आई। उन्होंने खुश होकर सुलेमान को 10 रुपए दे दिए। सुलेमान वो रकम लेकर अपनी कयामगाह की तरफ वापस लौट आया। दूसरी तरफ दूसरा भाई यूसुफ काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो दरख्त के नीचे बैठा हुआ बहुत गमजदा नजर आ रहा था। यूसुफ ने उसके पास जाकर उसके परेशान होने की वजह पूछी। वो आदमी रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि हम 4 भाई थे। हमारे वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद की तकसीम हुई और हम चारों भाइयों के हिस्से में एक काली बकरी आई, जिसे हम सब ने बराबर बराबर बांट लिया। हम सब उस बकरी के एक एक पाँव के मालिक बने। इत्तेफाक से जो पाँव मेरे हिस्से में आया था वो जख्मी हो गया। मैंने उस पर कपड़ा बांधकर मरहम पट्टी कर दी।
एक दिन वो बकरी चूल्हे के पास बैठी थी कि अचानक मरहम पट्टी वाले पाँव में आग लग गई। घबरा कर वो बकरी पड़ोस के एक भूसे के घर में जा गिरी। वो घर जल उठा और देखते ही देखते उसके बाद एक एक करके 7 और घरों में भी आग लग गई और गांव की पंचायत ने इंसाफ करते हुए मुझे ही मुजरिम करार दे दिया, क्योंकि आग मेरे हिस्से वाले पाँव से लगी थी। पंचायत ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उन 7 पड़ोसियों के घरों की मरम्मत कराऊं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 7 घरों की मरम्मत करा सकूं। यही मेरे गम और परेशानी की असल वजह है। ये मसला यूसुफ के लिए कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं थी, क्योंकि वो एक कानून जानने वाला था। यूसुफ ने इस आदमी से कहा, अगर मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे? उस आदमी ने फौरन जवाब दिया, अगर तुम मुझे इस मुश्किल से छुटकारा दिला दो, तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। यूसुफ ने कहा, ठीक है, तुम पहले गांव जाओ और वहां पंचायत के सब लोगों को इकट्ठा करो, मैं बाद में आता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहां से रवाना हो गया। जब यूसुफ गांव पहुंचा, तो उस वक्त पंचायत के सब लोग पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। यूसुफ के सामने सब लोगों ने बारी बारी अपनी शिकायत बयान की। सबकी बात सुनने के बाद यूसुफ ने नहायत सुकून से कहा, ये बात दुरुस्त है कि बकरी की वजह से ही आप सबको नुकसान पहुंचा। ये भी सही है कि बकरी के जख्मी पांव पर बंधा हुआ कपड़ा आग पकड़ गया था और आग लगने के बाद बकरी घबराकर इधर उधर दौड़ने लगी, जिसकी वजह से आप लोगों के घरों में आग लग गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि एक जख्मी पांव वाली बकरी दौड़ कैसे सकती है। दर हकीकत बकरी अपने 3 सही और तंदुरुस्त पांव की मदद से दौड़ सकती थी। अगर वो 3 पांव हरकत ना करते, तो ना बकरी आपके घरों तक पहुंचती और ना ही आग लगती। इसलिए असल कसूर जख्मी पांव का नहीं, बल्कि उन 3 सही पांव का है। यूसुफ की यह दलील और समझदारी की बात पंचायत के लोगों को बहुत पसंद आई। पंचायत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बकरी के 3 तंदुरुस्त पांव के मालिक भाई ही असल जिम्मेदार हैं, लिहाजा नुकसान का जुर्माना भी वही अदा करेंगे, क्योंकि बकरी तंदुरुस्त पांव से ही भागी थी। जख्मी पांव का मालिक ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने खुश दिली से यूसुफ को 500 रुपए दे दिए। यूसुफ वो रकम लेकर अपनी कयामगाह की तरफ वापस लौट आया और अब सबसे बड़ा भाई अहमद काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि वो एक शानदार और आलीशान इमारत के करीब से गुजर रहा था कि उसे रोने और आज़ारी की आवाजें सुनाई देने लगी। पूछने पर मालूम हुआ कि ये शहर के हाकिम के वजीर का घर था। अहमद वजीर के पास गया और वजह दरियाफ्त की, तो मालूम हुआ कि हाकिम ने वजीर को हुक्म दिया है कि अगर वो अगले दिन तक हाकिम के हाथी का वजन मालूम ना कर सका, तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। हाथी का वजन मालूम करना उस वक्त एक बहुत मुश्किल काम हुआ करता था और वजीर उस काम से बहुत आजिज आ चुका था। इसी खौफ की वजह से वजीर के घर वाले रो रहे थे। अहमद ने वजीर से कहा, अगर मैं हाथी का वजन मालूम कर दूं, तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? वजीर ने खुशी से कहा, अगर तुम ये काम कर दो, तो मैं तुम्हें 100 सोने की अशरफियां देने के लिए तैयार हूँ। ये तय हो जाने के बाद अहमद हाथी को दरिया के किनारे ले गया और उसे एक बड़ी कश्ती में सवार करा दिया। जब कश्ती पानी में उतनी डूब गई जितना हाथी के वजन से डूब सकती थी, तो अहमद ने कश्ती के किनारे पर पानी की सतह का निशान लगा दिया और उसके बाद हाथी को कश्ती से उतार लिया गया और कश्ती में उतनी ही सतह तक रेत भर दी गई। जब रेत भर दी गई, तो उसी तरह कश्ती का निचला हिस्सा उस निशान तक पानी में डूब गया जो पहले लगाया गया था। उसके बाद कश्ती में भरी हुई रेत को वजन किया गया, तो हाथी का असल वजन मालूम हो गया। वजीर ये देखकर बेहद खुश हुआ कि उसकी जान बच गई है। उसने वादे के मुताबिक अहमद को 100 सोने की अशरफियां और दीगर इनामात दिए। अहमद वो सब कुछ लेकर अपनी कयामगाह की तरफ वापस लौट आया। जब चारों भाई अपनी अपनी जगह वापस आ गए, तो चचा जान ने सब भाइयों और उनकी बीवियों को एक जगह बिठाया और कहा, जरा देखो तुम्हारे चारों भाई क्या क्या लेकर आए हैं। छोटे भाई क्या लाए हैं और दोनों बड़े भाई क्या लेकर आए हैं। दोनों बड़े भाई ज्यादा अक्लमंद और समझदार हैं, इसीलिए वो ज्यादा कमा कर आए हैं, जबकि छोटे दोनों भाई कम लेकर आए हैं। अब तुम खुद ही फैसला करो कि क्या इस हाल में जायदाद का बंटवारा करना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चचा जान ने ये बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम सब अलग अलग हो जाओगे, तो जो जायदाद तुम्हारे पास है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, और अगर तुम सब मिलकर रहोगे, तो अल्लाह के फजल से तुम्हारी जायदाद में इजाफा होता रहेगा। ये बात सुनकर छोटे दोनों भाई
اور ان کی بیویوں کو اپنی بات پر شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ سب کہنے لگے کہ اب ہم کبھی جائیداد کا بٹوارا نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ ایک ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ اس کے بعد چچا جان اپنے کمرے میں گئے اور وہ بٹوا لے کر آئے جو راستے میں گم ہو گیا تھا۔ انہوں نے وہ بٹوا سب کے سامنے رکھ کر کہا، یہ بٹوا میں نے خود ہی چھپا لیا تھا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے یہ بڑے بھائی کتنے عقل مند اور سمجھدار ہیں اور ان کی آمدنی چھوٹے بھائیوں سے کس قدر زیادہ ہے۔ کیونکہ اب تم سب پر صحیح بات واضح ہو گئی ہے، اس لیے اپنا بٹوا سنبھال لو۔ اس کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سب لوگ اطمینان اور محبت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری کہانی کو ایک لائک ضرور دیں۔ شکریہ۔